So hello guys, welcome to Sakshi's Tech Voice. So it's my day 7 of my tech journey. So here me solving a lead code problem of best time to buy and sell stock. So let's solve. This is the question: best time to buy and sell stock. So you are given an array prices where price is I, the price of a given stock on the ith day. So here the question. इस क्वेश्चन में हमें एक प्राइस एरे दिया गया है जहाँ प्राइस इज आई आयत डे का स्टॉक रिप्रेजेंट करता है. ओके, हमें सिर्फ एक बार बाई करना है और एक बार सेल करना है. इन द सेकेंड लाइन इट इज रिटन दैट यू वांट टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे टू बाय वन स्टॉक एंड चूजिंग अ डिफरेंट डे इन द फ्यूचर टू सेल दैट स्टॉक. मीन्स यू हैव टू बाय ओनली वन टाइम एंड अलॉन्ग विथ यू हैव टू सेल ओनली वन टाइम. मीन्स सिर्फ एक बार बाय करना है और एक बार सेल करना है. And at the end you have to return the maximum profit you can achieve from that transaction. If you can't achieve any profit, then return 0. If the profit is comes in negative value, then the profit is 0. ओके, सो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है प्राइस इज इक्वल्स टू 715364. ओके, और हमें आउटपुट दिया है 5. ओके, आउटपुट 5 मीन्स it is the maximum profit. Okay, explanation: buy on day 2 price equals to 1 and sell on day 5 price equals to 6, profit equals to 6 minus 1 equals to 5. Okay, buy on day 2 means if you think that the price 7 is on day 1, 1 is on day 2, 5 is on day 3, like this. If you can see here, 7 on day 1, 1 on day 2, 5 on day 3, 3 price on day 4, 6 price on day 5, 4th price on day 6. Okay, so if you see that firstly we can buy the product and then we can sell it. Okay, पहले हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तब बेचते हैं. Okay, this is the main crux of the problem. Okay, so 6 is the buy and 1 is the selling price and the 6 is the buying price. So 6 minus 1 equals to 5. It's the maximum profit. Okay, here it is written, note that buying on day 2 and selling on day 1 is not allowed. Like we have to firstly buy the product and then we have to sell it. Okay, so 1 is the price of buy in stock and 6 is the price of selling in stock. मतलब पहले हम खरीदेंगे 1 रुपये का एंड देन हम बेचेंगे 6 रुपये का. मीन्स 6 minus 1 equals to 5, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग माइनस बाइंग. ओके, एंड एट द एंड एग्जाम्पल 2 इज गिवन. इनपुट प्राइस इक्वल्स टू 76431, आउटपुट 0. Explanation: in this case no transaction are done as the maximum profit equals to 0. Okay, if we think after 7, 6 is the buying price or 1 is the selling price, then 1 minus 6 is minus 5 and minus 5 represents that no profit is happened, like value is decreasing. Okay, constants दिए हुए हैं हमको 1 less than equals to price but length हमें 10 की पावर 5 दिया, यानी 1 लाख हमें कंस्टेंट दिया, लाइक हमारी एरे की वैल्यू 1 लाख तक हो सकती है. तो इसका कोड ये रहा. अब मैं आप लोग को पूरा कोड समझाती हूँ लाइन बाय लाइन, बाय विच यू गेट an crux that how to write a code in the scenario. So I can explain you in a line by line way. So if you can see the page of mine. Okay, firstly in the lead code we solve not by hashtag include iostream. We don't write hashtag include iostream like in VS Code. Like in VS Code we are starting with hashtag include iostream then using namespace std, but in VS Code we are using class solution then public. Like class solution हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो लीड कोड होता है उसमें हम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं क्लास नेम से. ओके, देन पब्लिक, इसके बाद जो फंक्शन लिखेंगे उसे लीड कोड एक्सेप्ट करेगा. पब्लिक लिखने के बाद जो भी हम फंक्शन लिखेंगे उसे लीड कोड एक्सेप्ट करेगा. ओके, देन इंट मैक्स प्रॉफिट वेक्टर इंट एंड प्राइसेस. लाइक इसको हम अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें इसका मीन्स क्या होता है, तो इंट एक इंटीजर फंक्शन होता है जो मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करता है. ओके, मैक्स प्रॉफिट फंक्शन का नेम है. ओके, मैक्स प्रॉफिट फंक्शन का नेम है. वेक्टर इंट एंड प्राइस इंटीजर एरे को रिप्रेजेंट करता है. ओके, प्राइसेस इनपुट एरे का नाम. ठीक है, एंड रेफरेंस ऑपरेटर है, वी ऑल नो. ओके, सो दिस इज द मेन क्रक्स बिहाइंड दिस लाइन. ओके, एग्जाम्पल 715364 जो हमने पहले लिया था. इंट एन इक्वल्स टू प्राइस डॉट साइज, एरे का साइज़ निकाल रहे हैं. लाइक प्राइस कितने साइज़ की हमने एरे ली है, लाइक 1 2 3 4 5 6 एन इक्वल्स टू 6 साइज़ की हमने एरे ली हुई है.
वेक्टर इंट बेस्ट बाय एन। बेस्ट बाय रिप्रेजेंट क्या करता है, ये एक नेम है जिसे हम वेक्टर बना रहे हैं। ओके, इसका साइज़ n है, अभी इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, बेस्ट बाय की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, बेस्ट बाय ज़ीरो इंट मैक्स, लाइक हम कंपेयर किससे करेंगे, अपनी पहली वैल्यू को। तो हम लाइक इन दिस केस हम किससे बेस्ट बाय को किससे कंपेयर करेंगे, ज़ीरो क्या ले आऊँ, तो हम मैक्सिमम इंटीजर लेते हैं। मैक्सिमम इंटीजर यानी प्लस इन्फिनिटी। ओके, बेस्ट बाय ज़ीरो हम इंट मैक्स से पहली वैल्यू हम प्लस इन्फिनिटी से कंपेयर करते हैं। ओके, लाइक सेल है, पहले हमने सेल देखा, ठीक है। ओके, तो 7 को हम किससे कंपेयर करेंगे, बेस्ट बाय हम ज़ीरो इन्फिनिटी लेंगे, प्लस इन्फिनिटी। ओके, देन 7 और 1 में कंपेयर करेंगे मिनिमम, तो हम 7 से कंपेयर करेंगे इन्फिनिटी को, तो 7 ही आएगा मिनिमम। ओके, देन 1 और 7 में करेंगे तो 1 आएगा। 5 और 1 में करेंगे तब भी 1 आएगा। 3 और इनमें करेंगे तो 1 आएगा। 6 और उसके पहले वाली वैल्यू में करेंगे तब भी 1 आएगा। 4 और इससे पहले वाली वैल्यू में करेंगे तब भी 1 आएगा। ओके, सो पहले दिन से पहले कोई प्राइस नहीं है। इंट मैक्स बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। बेस्ट बाय मिन बेस्ट बाय आई माइनस वन प्राइस आई माइनस वन। पिछले दिन का मिनिमम प्राइस बताता है बेस्ट बाय प्राइस आई माइनस वन, कल का स्टॉक प्राइस। ओके, लाइक दिस। ओके, तो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। 715,364 इसको हमने बेस्ट बाय से कंपेयर किया। ओके, इंट मैक्स प्रॉफिट इक्वल्स टू ज़ीरो। जब हम सेकेंड एग्जाम्पल हमने देखा कि नेगेटिव में वैल्यूज आ रही हैं, तो हमने प्रॉफिट को ज़ीरो ले लिया। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब हर दिन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। मैक्स प्रॉफिट अबाउट द आउटपुट फॉर द केस 1 वी गेट एन आउटपुट 5, and for the case 2 we get the output as 0 because on calculating the profit we get negative values which is not valid, that's why our output is 0. So this is the whole problem of best buy and sell stock.